Hello everyone, welcome to our channel Success Edutech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our next point of 4 chapter, new trades, new employments and new services. तो हमारे चैप्टर का जो अगला पॉइंट है न्यू ट्रेड्स, नया व्यापार, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स यानी नई नौकरियां और न्यू सर्विसेज यानी नई सेवाएं। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे. While people lost out in many ways after the forest department took control of the forests, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. Many communities left their traditional occupations and started leading of forest products. This happened not only in India but across the world. तो बहुत सी जो लोगों की आवश्यकताएं थी वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती थी, मगर उस पर कंट्रोल किया था गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से. और जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थी उनकी जो ऑक्यूपेशंस थे यानी जो व्यवसाय करते थे वो उन पर पाबंदी आ चुकी थी. और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो लगभग सारी दुनिया में यही हो रहा था. With the growing demands for rubber in the mid 19th century, और रबर की जो मांग थी वो 19th सेंचुरी में बढ़ चुकी थी. इन द Munduruku peoples of the Brazilian Amazon who lived in the village on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. और ये जो लोग थे कौन से मुंडरुको पीपल्स फ्रॉम ब्राज़ीलियन अमेज़न में रहते थे वो लोग. और मिनियॉक में रहने वाले कुछ लोग थे. उन्होंने रबर सप्लाई करने का जो उद्योग था वो शुरू किया था. Gradually they descended to love trading posts and become completely dependent on traders. और ये सब कुछ काम करने के लिए वो ट्रेडर्स पर डिपेंड थे, जो व्यापारी थे उन पर वो डिपेंड थे. In India, the trade in the forest products was not new. From the medieval period onwards, we have records the Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, homes, silk, cotton, cocoons, ivory, bamboos, species, fibers, grasses, gums, and rinse through nomadic communities like the बंजारास. तो भारत में इस उद्योग पर बहुत ही लक्ष्य केंद्रित किया गया है. आदिवासी लोग जो थे वो ये उद्योग बड़े पैमाने पर करते थे, जो कि हमने देखा है मिडिवल टाइम से, यानी जो मध्य युग का काल था उस वक्त से ये काम कर रहे थे. विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, वेबर ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. ब्रिटिशों के आने के बाद ये उनके अंडर आ गया सभी जो व्यापार था वो. द ब्रिटिश गवर्नमेंट गिव मेनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स इन द सोल right to the trade in the forest products and particular areas. Grazing and hunting by local people were restricted in the process. और ग्रेजिंग और हंटिंग का जो बड़े पैमाने पर जो उद्योग हो रहा था उस पर ब्रिटिशों ने कंट्रोल किया था. इन द प्रोसेस मैनी pastoralists and nomadic communities like the Korwa, Karacha and the Yurkola of the Madras presidency lost their livelihoods. Some of them begins to called criminal tribes. और ये जो लोग थे आदिवासी, उनकी जो रोजी रोटी थी वो छीनी गई इसके कारण और वो क्रिमिनल बन गए. And we are forced to work instead of factories, mines and plantations under government supervision. और ये सब जो लोग थे वो गवर्नमेंट के अंडर सुपरविजन के अंडर वो काम करने लगे. न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क्स डिड नॉट ऑलवेज मीन
improved well-being from for the people। और ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ थी काम करने की फैक्ट्री में वगैरह, वो उनके लिए कुछ अच्छी साबित नहीं हो रही थी। इन आसम both men and women from forest communities like Santhals and Orions from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantations. Their wages from law and conditions of work were very bad. They could not return easily to their home village from where they had been recruited। तो ऐसे बहुत से लोग थे, आदिवासी लोग थे जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था। इसके कारण कम पैसों में उनको काम करना पड़ता था और उनकी जो रोज़ी रोटी थी वो भी उनको अच्छी तरीके से नहीं मिल रही थी। कम वेजेस यानी कम कमाई के कारण उनका उद्धार नहीं हो रहा था। तो उसके बाद रिबिलियन इन द फॉरेस्ट, उसके बाद कुछ लोगों ने ब्रिटिशों के विरुद्ध उठाव किया। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया and across the world, forest communities rebelled against the changes of were being imposed on them। और इस कानून के विरुद्ध बहुत से जो आदिवासी लोग थे उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध उठाव किया। The leaders of these movements against the British like Sidhu and Kanu in the Santhal परागनास। सिद्धू और कानू नामक जो प्रजाति है उन्होंने संथाल के जो दो भाग है सिद्धू और कानू, उन्होंने ब्रिटिशों के विरुद्ध उठाव किया। बिरसा मुंडा ऑफ छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर और अलूरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश are still remembered today in the song and stories। We will now discuss the detail one such rebellion which took place in the kingdom of Bastar 1910। तो ये ऐसे बहुत से जो उठाव उसके ब्रिटिशों के विरुद्ध हुए हमने यहाँ पर देखा, जैसे कि संथालों का उठाव, बिरसा मुंडा जो कि छोटा नागपुर में है उनका उठाव, और आलूरी सीतारामन राजू जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ वो उठाव, और कुछ सॉन्ग्स ऑफ स्टोरी उस उठाव के हम पढ़ चुके हैं। तो बस्तर में हुआ 1910 का उठाव। तो बहुत से ऐसे उठाव ब्रिटिशों के विरुद्ध हो चुके थे। तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।